So this is not idea which has just a year before और 2 साल पहले हमने इसके ऊपर कुछ काम शुरू किया. ये पहले 18-20 साल से लगभग इस पूरे विषय के ऊपर काम हो रहा था. मैं एक साधारण नागरिक हूं. आप तो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं. लोग हमारे ऊपर हंसे थे. People laughed on us that how can there be a school which can educate the youngsters to get into public life? And we established the MIT School of Government. Thank you, Professor Bapat. Janani Janmabhumischa Swargadapi Gariyasi. Behalf of the patrons of this very prestigious, unique edition of National Legislators Conference, Madam Sumitra Mahajan ji, Shri Shivraj Patil ji, Madam Meera Kumar ji, and Shri Manor Joshi ji, and all the respected Vidhan Sabha speakers sitting in the front row and the council chairmen, all the MLAs and MLCs sitting in this audience. Rather, on behalf of them, I welcome once again to each and every Legislative Council members and MLAs and MLCs of our country. What a wonderful evening, my dear friends. I have no words to express my happiness and satisfaction today evening. Tomorrow, very much we will be having the formal program in the morning, but this is just a cultural evening wherein we are very much waiting for our own Chief Minister of Maharashtra to come here. Our own leader, Madam Neelam Gore, who is the Deputy Council Chairman of our Vidhan Parishad, she is here. So she is very well representing, and tomorrow morning all the leadership of Maharashtra will be here to welcome, and the formal program will go on. But for next just 3 to 4 minutes, I just want to express my the overall emotions about this very program, my dear friends. Just now, Professor Bapat, Madam, they expressed the film also, what you all have seen, the first school of the country to develop the future politicians, and Bharatiya Chhatra Sansad and National Women's Parliament, all these platforms, and now this National Legislators Conference. So this is not idea which has just a year before और 2 साल पहले हमने इसके ऊपर कुछ काम शुरू किया. ये पहले 18-20 साल से लगभग इस पूरे विषय के ऊपर काम हो रहा था. स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडरशिप का स्कूल एंड बाकी सब विषय. और मुझे प्रसन्नता है कि आज इतने बड़े नंबर से, मतलब करीबन 2230 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है. मुझे नहीं पता आज बहुत बड़े नंबर में इतने लोग, सब लोग आप आए हैं. टुमारो मॉर्निंग हाउ मेनी exact number is going to come for this, I think the time will tell, but I am very optimistic and positive that the huge number is going to turn up, and very positive response from various political parties. The beauty is सभी political पार्टियां भारत की इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है. ये मुझे एक अभिनंदनीय लगता है, और उसका एक सेटिस्फैक्शन पेट्रन्स को पर्टिकुलरली, और हमें सबको, सभी विधानसभा अध्यक्षों को, सबको इसका श्रेय जाता है कि जो एफर्ट्स उन्होंने इसके बारे में लिए पिछले साल भर में. मैं उनका यहाँ पे स्वागत, अभिनंदन करता हूँ. मैं आप सभी MLAs और MLCs को क्विकली मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगले 2 दिन में वहाँ पे कुछ जो चीज़ें हमने यहाँ पे की है, कि हमने अपील किया था कि अपने राज्य का जल और मिट्टी भी लेके आए, और वहाँ पे कुछ ऐसी अरेंजमेंट किए वहाँ पे वो करे, ताकि एक इमोशंस कैसे जागरूक हो. तो अगले 2 दिन में हमारी ये भावना थी. तो मुझे सुमित्रा ताई ने बोला, राहुल इस तरीके का कुछ डिज़ाइन प्लान हो सकता है क्या? देखो कि 2 दिन में MLAs एक दूसरे को, इतने कम से कम 30-40 MLAs एक दूसरे को, नहीं तो अपने राज्य के MLAs एक दूसरे को मिलते हैं. तो ऐसा कुछ इमोशंस कि 2 दिन बाद कम से कम 30-40 नए अलग अलग राज्यों के MLAs के साथ उनकी दोस्ती हो. तो हमने ये कोशिश किया है यहाँ पे कुछ करने का की, और उस तरीके से आप उसका लाभ उठाए. वहाँ पे एक सिग्नेचर का एक डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे बहुत सारे MLAs ने ऑलरेडी यहाँ पे सिग्नेचर्स किए हैं. जैसे कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देश की बनी थी, तब आप जानते हैं कि कितने महानुभावों ने उसमें सिग्नेचर्स किए थे, और वो बहुत दस्तावेज. और ये भी आज एक तरीके से बहुत ऐतिहासिक, ऐसा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैं रिमेंबर करूंगा अभी, और हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कल ओम बिरला जी आएंगे, इसका उद्घाटन करेंगे. वैलिडिक्टरी में हरिवंश जी आएंगे, वो उसका वैलिडिक्टरी समारोह होगा. और एक श्रृंखला के रूप में ये पूरा विषय आने वाले समय में आगे चला जाए, ये भावना है. मैं दूसरा एक कहना चाहूँगा कि यहाँ पे पूरे MLAs को अपील है कि करीबन 120 के लगभग कैमराज यहाँ पे लगे हुए हैं, और एक बहुत ऐतिहासिक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन कि आपके जीवन की सक्सेस स्टोरी इसमें पूरी डॉक्यूमेंटेड हो. एक
आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट, जो भी आपकी भावना कि मैं लीडर कैसे बना, बिकॉज आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस पर्टिकुलर असेंबली में देश का पॉपुलेशन 150 करोड़ है, तो शायद 40 करोड़ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उन सभी लोग आपको देख के, दे हैव एस्पिरेशन, द यंग डेमोग्राफिक डिविडेंड अपना यंग कंट्री, दे ऑल आर लुकिंग एट यू कि हमें आगे राजनीति में आना है। तो आपके जो कुछ गुण हैं, तो ये वीडियो डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से पूरे भारत में और अलग अलग लैंग्वेजेस में वर्ल्ड वाइड इसका प्रमोशन होगा, और 3000 पन्नों की इसकी वेबसाइट है। मैं आप लोगों को विनती करूंगा वो वेबसाइट भी आप देखिए, nlcbharat.org। तो एक संस्था के रूप में ये चारों पेट्रन्स और सभी लोगों की हमारी जो पिछले करीबन 10-12 के लगभग मीटिंगें हुई, आपने बाहर भी देखा होगा, तो वैलिडेटरी में वी आर होपिंग कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो स्पीक ऑनलाइन, एंड even the Shri Khadge ji also from the Congress party, the leader of opposition. So likewise ये पूरा जो ढांचा है, तो जिस तन्मयता से, मन से ये चारों पैटर्न्स ने पूरा इकट्ठा आके चारों के सिग्नेचर्स उस पे हुए, आपको कम्युनिकेशन गया, तो पार्टी से ऊपर उठकर इसके बारे में जो भावना मीरा कुमार जी ने भी बोली और सभी लोगों ने बोली, कल पाटिल साहब भी उनका उद्बोधन यहाँ करेंगे, शिवराज पाटिल जी, हम उनको भी, आप जानते कि कितना उनका तजुर्बा है, और मैं खुद लातूर से आता हूँ जो महाराष्ट्र का, तो ही ऑल्सो बिलोंग्स टू माई कॉन्स्टिट्यूंसी। माई ग्रैंड फादर दैट टाइम व्हेन ही वाज यंग, ही ब्लेस्ड हिम, एंड यू नो सो मच ओल्ड स्टोरीज। थैंक यू शिवराज पाटिल साहब टू बीइंग विथ अस। मैं यहाँ पे कल एक इनोवेशन का बहुत बड़ा एग्जीबिशन नीचे है, मतलब आपने खाली 40% चीज़ें यहाँ पे देखी है, 60% चीज़ें कल मॉर्निंग ओम बिरला साहब इसका उद्घाटन करेंगे, और वो भी आपको देख के उसका भी लाभ उठाना, जो अफोर्डेबल इनोवेशंस, और बहुत 100 ऐसे एमएलए पूरे भारत से हमने चुने हैं जिन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस, शायद कुछ एक सिंबॉलिक है उसमें कि सब लोगों को हम जस्टिस नहीं दे पाएंगे, लेकिन 100 लोग वहाँ पे हमने डिस्प्ले किए कि जिनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस उनके कॉन्स्टिट्यूंसी की, मैं उनका वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ये वीडियो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मैंने बोला, बहुत उत्साह से आप उसमें पार्टिसिपेट करने की हमारी सबकी अपेक्षा है। ये आयोजन, बिकॉज मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, राहुल ये क्यों, इसमें क्या आप क्यों कर रहे हैं इसको, एक शिक्षण संस्था, स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और ये सब किस तरीके का, लेकिन मैं कुछ कमियां शायद रही होंगी इस पूरे प्रोसेस में, लेकिन एक इंटरनेशनल फोरम्स जैसे CPA, IPU, ऐसी इंटरनेशनल बॉडीज है, शायद भारत ये सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो आने वाले समय में ये राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के माध्यम से एक बहुत अद्भुत ऐसा एक एडवोकेसी ग्रुप, जो हमारे जितनी भी विधानसभाएं, हमारी लोकसभा, तो इसके माध्यम से एक बहुत अच्छा जर्नी जो बियॉन्ड पार्टी लाइन जाके, मुझे याद आती है पृथ्वीराज चौहान जी, आज महाराष्ट्र के फॉर्मर मुख्यमंत्री यहाँ पे नहीं है, उनके साथ भी मेरी चर्चा हुई थी, वेंकैया नायडू जी के साथ भी चर्चा हुई थी। वो बोले राहुल, अमेरिका में तो बोले खाली एक ही पार्टी, 2 पार्टियां हैं, एक लैंग्वेज है, हमारे यहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेजेस है, यू आर अ न्यूट्रल पर्सन, यू आर एजुकेशन में आप है, तो आप ये लीड जरूर लेना चाहिए। और उन्होंने कुछ ऐसे, बाकी भी बहुत सारे नेताओं ने ये मेरा विचार वैलिडेट किया कि इस विषय में एक न्यूट्रल तरीके से, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का आपका एफिलिएशन नहीं है, किसी पार्टी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका जुड़ाव नहीं है, तो ये आप, तो इसीलिए शायद मैं आप सब लोगों को विनती करूंगा, मतलब ये सब बिल्टअप होते हुए हमारे सबके मन में शंकाओं के बारे में सोसाइटी में हम सब लोग देखते हैं। कुछ लोगों ने ये भी बोला ये कांग्रेस का प्रोग्राम है, ये बीजेपी का प्रोग्राम है, ये ऐसा भी कुछ, ऐसे वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। तो बट मैं आपको बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा, मैं मेरे मन से एक पेट्रियोटिक तरीके से, एक देशभक्ति की भावना और एक एक्टिव सिटीजन, मैं एक साधारण नागरिक हूँ, आप तो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं, आप सभी लॉ मेकर्स हैं, इस देश का लॉ आप बना रहे हैं, तो मैं इतना ही है कि ये शिक्षण संस्था और मेरे पिताजी के ब्लेसिंग से और मेरे माताजी के ब्लेसिंग से और सभी पेटर्न्स के ब्लेसिंग से ये प्लेटफॉर्म ये जो बन रहा है, अनलेस एंड अनटिल हमारी मॉर्निंग में आज जो मीटिंग हुई सभी विधानसभा स्पीकर्स की उसमें भी मैंने एक भावना बोली कि ये प्लेटफॉर्म अगर आप लोगों ने, यू आर द कस्टोडियन, यू आर द इंचार्ज, इफ आप लोगों ने अगर इसका अडॉप्शन एक खुले दिल से, एक मन की व्यापकता से और मन की उदारता से अगर इसको नहीं देखा तो ये फेल हो जाएगा। मतलब मैं पहले दिन ही ऐसा कुछ बोलना ये ठीक बात नहीं, लेकिन मैं मेरी एक मन की भावना में आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस पूरे प्लेटफॉर्म से मेरी इच्छा है कि तमिलनाडु का एक कोई एमएलए और महाराष्ट्र का एमएलए, उनकी भी दोस्ती कैसे बन जाए। वहां कांग्रेस और बीजेपी का झगड़ा हो सकता है, वो लोकतंत्र में जरूरी है वो झगड़ा होना, लेकिन मेरी मन से भावना है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं कांग्रेस का एमएलए हूं, कुछ डेवलपमेंट का, इरिगेशन का बहुत बढ़िया काम तमिलनाडु में किया है, कांग्रेस बीजेपी का झगड़ा, लेकिन वहां का बीजेपी का कोई एमएलए, डेवलपमेंट की तो बात हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, हम बुला सकते हैं एक दूसरे को,
तो उसको पार्टी का वो झगड़ा जरूर होना चाहिए लोकतंत्र में और डेमोक्रेसी में। मैडम लेट अस वेलकम श्री मैडम उषा उत्तुप जी। कल इवनिंग में मैडम आप जस्ट वेव द हैंड, a great lady, we all know that a legendary figure. टुमारो इवनिंग मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोल गया कि करीबन भूल गया बोलना आपसे कि करीबन 200 एमएलएज ने रजिस्ट्रेशन किए हैं कि जिसमें एक रैंप ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का जो एक पथ है, तो उसके ऊपर सभी कुछ एमएलएज का चलना वहाँ पे अपेक्षित है। आपने अपने राज्य के अटायर में कि ये लोकतंत्र का पथ है, आपने फैशन शो देखे होंगे जिसमें मेल फीमेल सभी लोग उसके ऊपर चलते, तो यहाँ पे ये लोकतंत्र का पथ, तो राजनीति का पथ, लोकतंत्र का पथ। तो ऐसे तो राजनीति के प्रति जो अनास्था लोगों के मन में, राजनेता भ्रष्ट है, पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्ट है, ये जो साइकोलॉजी हमारे देश में यंग लोगों की और बाकी भी लोगों की, बहुत सारे मेजॉरिटी लोगों को, मैं ये भी यहाँ झंडा पहनता हूँ तो मैं राजनीति में नहीं हूँ, बट फिर भी लोग थोड़ा सा ये राजनीति में दिखता है ये आदमी। तो ये बदलाव की भूमिका से MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट 2005 में निकला, भारतीय छात्र संसद, नेशनल वुमेन्स पार्लियामेंट, और अभी ये जो नेशनल लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस 18-20 साल बाद जो विधानसभाओं के साथ विधानसभा स्पीकर, यहाँ पे आए हुए सभी स्पीकर्स, मैं मतलब सबका नाम लूंगा तो बहुत समय जाएगा, लेकिन बहुत नम्रतापूर्वक आप सब लोग मेरा वंदन स्वीकार करें कि इसमें से जितने भी महानुभाव स्पीकर्स बैठे हुए ये सभी लोग MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, भारतीय छात्र संसद से पिछले 18-20 साल से, ये इनके ऑफिसेस, इनके प्रीवियस प्रेडिसर्स जो वो सब लोग इसके साथ जुड़े हुए थे, और उनके समन्वय की वजह से ही, और ऑफिशियली ये सब लोग इसके सलाहकार मंडल में उन्होंने उनका आने का उन्होंने सपोर्ट दिया, उसी की वजह से और पेट्रन्स के ब्लेसिंग की वजह से ये कॉन्फ्रेंस हो पाई और बहुत ये कॉन्फ्रेंस की दिशा बन पाई। अगले 2 दिन में 40 पैरेलल सेशंस है, वो हॉल्स बहुत सुंदर बने हुए हैं, और हर एमएलए को मैं दूसरा भी कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों को इसमें बोलने का मौका है। इट इज़ नॉट जस्ट अ कॉन्फ्रेंस। मुझे कई लोग बोले चीफ गेस्ट कौन है राहुल जी, इसमें चीफ गेस्ट इसमें या और भी लोग, नेचुरली ओम बिरला साहब इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस की सफलता और इस कॉन्फ्रेंस का अलगपन यह है कि आप सभी लोग इसके एक तरीके से मैं चीफ गेस्ट ऐसा समझता हूं, क्योंकि इतने सारे पार्टी के विधायक, प्लीज मिस्टर राजू सेठी जी प्लीज कम, पद्म विभूषण राजू सेठी जी, मुंबई का एयरपोर्ट जहां पे आप आए हैं, जो पूरा एयरपोर्ट का डिजाइन जो दिखता है और यहाँ का भी डिजाइन, उसमें पद्म भूषण राजू सेठी जी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, मैं उनका भी यहाँ पे वेलकम करता हूँ। तो मेरी आपसे सब लोगों से विनती है कि ये वीडियो डॉक्यूमेंटेशन, कल ये रैंप ऑफ डेमोक्रेसी में एक नेशनल स्पिरिट सभी लैंग्वेजेस में जो एक हम कैसे इकट्ठा आ सकते हैं। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में भी भारत सरकार बहुत कंसर्न है, साउथ एंड नॉर्थ लैंग्वेजेस के बारे में भी हमारे मन में एक जो कुछ ऐसा एक ये होता है, तो इसलिए ये कॉन्फ्रेंस का आदान प्रदान जो है, हमने हेडफोन्स भी यहाँ पे पूरे प्लानिंग किया हुआ है, एंड इट विल बी इंग्लिश एंड हिंदी, 50% इंग्लिश 50% हिंदी, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चरिंग इस साल किया है। और ये पूरा अनुभव लेके अगले साल शायद कुछ सभी मुख्यमंत्रियों को हमने विनती की है कि कौन इसमें आगे आता है। ऑलरेडी 4 राज्यों के मुख्यमंत्री आगे आए हैं, इस बार का तो एफर्ट महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और हमारी संस्था की तरफ से, लेकिन अगली बार काफ़ी सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया कि आने वाले समय में हम ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी, बिकॉज ये कोई प्राइवेट संस्था का काम नहीं है, ये मुझे लगता है कि एक पैशन के नाते मेरे जीवन में मेरे पिताजी के आशीर्वाद से जो मुझे मौका मिला, तो उससे मैं ये करने का सौभाग्य मैं मानता हूँ। और आप सब लोग रैंप ऑफ डेमोक्रेसी से लेके बाकी जितने भी छोटे छोटे इनिशिएटिव अगर बारीकी से आपने देखे, सभी राज्यों के गीत भी हमने वहाँ पे लिखे, एवरी स्टेट सॉन्ग वी हैव जस्ट डिस्प्लेड देयर, जो माइन्यूट डिटेलिंग जितना भी वहाँ पे दिखता है। MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट जब निकला 2005 में, वहाँ का भी हमने जो लोगों ने 25 लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, उनका ग्रेटिट्यूड भी वहाँ पे हमने लिखा है कि पहले फॉस्टरिंग ईयर्स में ये जो इंस्टीट्यूशन जब बन रही थी, लोग हमारे ऊपर हंसे थे, पीपल लाफ्ड ऑन अस दैट हाउ कैन देयर बी अ स्कूल व्हिच कैन एजुकेट द यंगस्टर्स टू गेट इनटू पब्लिक लाइफ, एंड वी एस्टैब्लिश्ड द MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, एंड थ्रू which now this all such further ideas have evolved with your blessings, all of your blessings, and many MLAs and many other leaders have contributed as a faculty emeritus in that particular school. So much can be said. I can just speak for hours together, because last 12 months I have gone to 20 states, my dear friends, and all the speakers and the opposition leaders and the chief minister of our country, I have had an interaction. I have had some whatever little time they gave me, I tried to communicate to this is not one party agenda or some government. This is a neutral, active citizenship, a common person, the participation, the civil society participation in the overall exercise, and it can go a long way. That is my feeling.